Now, after multiple delays and couple of interjections by the top court, the elections for the Wrestling Federation of India, the WFI Executive Committee, will take place today, with outgoing President Brij Bhushan Sharan Singh's faction expected to sweep the polls that are slated for today. Now, led by UP Wrestling Association's Vice President Sanjay Kumar Singh, the Brij Bhushan-backed panel is confident of a clear majority, with some officials even claiming a 100% result. Meanwhile, Republic confronted Brij Bhushan Sharan Singh, who faces sexual harassment charges. Listen in to that exclusive conversation. हमारा पूरा सपोर्ट है, पूरे देश का सपोर्ट है, पूरे देश के खिलाड़ी हैं। आप अभी देख लीजिएगा कि यहाँ कितने राज्यों के लोग आपको मिलेंगे, कितने खिलाड़ी मिलेंगे, और उनको देखिएगा बंद कमरे में कहीं बैठे होंगे। रेसलर क्यों बात शब्द, रेसलर तो देश के हमारे साथ हैं। 3 आदमियों को आप रेसलर कहते हैं, 3 आदमियों को आप रेसलर कहते हैं। पूरे देश के रेसलर हमारे साथ हैं, हरियाणा के रेसलर हमारे साथ हैं। All right, so there you heard Brij Bhushan Sharan Singh confident of win, but shifting focus to the other focus story. This one from the state of Uttar Pradesh, where the Archaeological Survey of India has presented a survey report on the Gyanvapi Mosque complex to the district court in a sealed cover, and the court is now set to hear the case today itself. Meanwhile, the Allahabad High Court note on Tuesday had dismissed the pleas that challenged the very maintainability of the 1991 lawsuit that sought the restoration of the temple where the Gyanvapi Mosque stands, and observed that the religious character of a disputed place can only be decided by the court. Now, the ASI conducted a scientific survey of the Gyanvapi complex situated adjacent to the Kashi Vishwanath temple. The objective primarily was to ascertain whether the mosque was built atop the remains of the pre-existing Hindu temple structure. The survey was initiated in response to the district court's directive on 21st of July instructing an examination beneath the mosque's domes, cellars and the western walls as well. Before we go across to Madhurima, listen in to a reaction that's coming from the Hindu lawyer on the case, Gyanvapi case that would be heard by the court today. All right, we will play out that conversation later, but let's go across to Madhurima, who's joining us live from Varanasi. Madhurima, good morning. We understand that the Muslim side has objected to the report being presented in the open, saying that it should be in a sealed cover. Once again, take us to what exactly are the objections being raised by the Muslim side as far as that findings of the survey is concerned. Well, good morning to you too, Samiksha. And the mosque committee has represented their side in front of the court, and they are of the view that those 2 envelopes that have been such sealed by the ASI and have been submitted in front of the Varanasi district, that they should not be made public, and anybody who wants a copy of that should take a formal undertaking in front of the court through an affidavit. However, the Hindu side today is contesting at around 2 o'clock is the time set for that specific case, and they're contesting that those reports should be made public. Right now, I'm joined by the Hindu petitioners side lawyer Subhash Nandan Chaturvedi. सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज जो आपका जो बहुत महत्वपूर्ण केस है, आज आप कोर्ट के सामने क्या रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि जो रिपोर्ट्स आई हैं एएसआई के साइंटिफिक सर्वे की, उनको पब्लिक किया जाए? बिल्कुल, देखिए, जो अभी पिछले 18 तारीख को जो एएसआई की टीम ने, उनके जो काउंसिल ने जो सील बंद लिफाफे में 92 दिनों तक जो रिपोर्ट ये सर्वे चला है, उसको इन्होंने दाखिल किया था। चूंकि ये मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल चुका है, सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा था कि सील बंद लिफाफे में इसको दाखिल न किया जाए, और ये सारी रिपोर्ट खुले तौर पर जो है कोर्ट में पेश किया जाए। अब चूंकि ये मामला केवल, देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई हम लोगों का नहीं है, हमारी आपकी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों करोड़ लोगों की लड़ाई है। हमारी वादनी भले 4 हो सकती हैं, जिनके तरफ से हम लोगों ने जो एएसआई सर्वे मांग की थी और सर्वे हुआ है, ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो करोड़ों करोड़ जो कहा जाए परोक्ष जो वादी हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट में आखिर निकल कर क्या आ रहा है। चूंकि ये विवाद बहुत पुराना है और 100 करोड़ से ऊपर लोग, मुस्लिम पक्ष भी जानना चाहता है, तमाम करोड़ों मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि सच्चाई उस ज्ञानवापी परिसर का है क्या।
अगर आप इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे तो जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चाह रहे हैं, उस पर दिक्कतें आएंगी। केवल हम ये आप जो है कोई सीक्रेट जो है कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है। 370 में भी खुली सुनवाई हुई है, राम मंदिर में भी खुली सुनवाई हुई है, और राम मंदिर में भी जो एसआई ने सर्वे दाखिल किया था, वो सर्वे रिपोर्ट जो है खुला बंद लिफाफे में नहीं दाखिल किया था। सर, अगर हम इस केस की बात करें तो अगर रिपोर्ट सामने आती है, पब्लिक फाइंडिंग सामने आती है, तो आपके जो बाकी केसेस हैं उनमें भी मदद मिलेगी आपको? बिल्कुल, अगर ये बंद लिफाफे में जाएंगे और हम तक नहीं ये सारी रिपोर्टें आएंगी तो हम ये ट्रायल में हमें दिक्कत होगा। भाई, हम जब ये सारी कापियां एसआई के रिपोर्ट को जब प्राप्त करेंगे कोर्ट से जो है, तो मिलने के बाद हम उस पर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी तो ट्रायल में हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो मांग इनकी है, एसआई ने कहा, उनके काउंसिल ने कहा कि हमें जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं था और हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसको लिफाफे में दिया था। मुस्लिम पक्ष ने भी मांग की है, प्रार्थना एप्लीकेशन दिया हुआ उन्होंने भी कहा है कि नहीं, इसको जो बंद लिफाफे में ही रखा जाओ, सीक्रेट रखा जाओ, एफिडेविट लिया जाए। जो पक्षकार या उनके काउंसिल जो अगर लेते हैं ये सारी रिपोर्ट, तो एफिडेविट लिया जाए कि पब्लिकली ये लीक ना हो, मीडिया में न जाए, पब्लिक डोमेन में न जाए। ऐसी मांग उन्होंने की है, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए हम लोगों ने भी एक प्रार्थना पत्र रखा कि ये इस लिफाफे को तत्काल खोला जाए। इस पे सुनवाई देखिए आज होनी है, और इसी सुनवाई के बाद जो कोर्ट जो फैसला लेगा। आश्वस्त है सर कि आपके फेवर में आज सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अगर ये जो फाइंडिंग्स हैं एएसआई की साइंटिफिक सर्वे की वो बाहर आती है, तो आपका जो प्राइमरी केस है जिससे कि ये सर्वे के निर्देश दिए गए कि अंदर पूजा करने की उनको वहां पर अनुमति दी जाए, कितना उसको फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा मिलना है, ये बहुत बड़ा जो है बेस, ये एसआई सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट में आ रही है और जिसकी मांग हम लोगों ने किया था, ये सर्वे रिपोर्ट वैज्ञानिक और प्रमाणित तरीके से जब कोर्ट में दाखिल होगी और हम लोगों तक पहुंचेगी, तो ये सारे साक्ष्य एविडेंस ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन बनेगा। ये पूरा आधार बन जाएगा पूरे मुकदमे का। मुकदमे की दशा और दिशा, यानी मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी दशा और दिशा को ये तय कर देगा। इसलिए ये जो है रिपोर्ट जो है, यही एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ये हमारे लिए कहा जाए कि एक इशू बनेगा, जो इशू फ्रेम बनेगा जो पूरे मुकदमे का, इस पे कार्रवाई होगी और हमारे पक्ष में होगी। इसलिए हम जानते हैं कि भाई चाहते भी हैं, कोर्ट भी हमारे पक्ष में आज फैसला देगा जो भी सुनने के बाद, कि ये सीलबंद लिफाफे को खोला जाए, क्योंकि कोर्ट भी, हमें नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना करेगा। So there you heard him, Samiksha, and he is of the view that all the scientific findings that have been submitted by the ASI in front of the court should be made public, because that's also going to help them augment their base case that the women or the devotees should be allowed inside that particular mosque which they contend was a temple, and that they should be allowed to offer prayer to the deity. Samiksha, back to you.